वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा what we have read that King Tut's mummy was taken। किंग तत्स की जो डेड बॉडी थी उसको मम्मी बोलते हैं, उसको लिया गया। ठीक है, और देयर आफ्टर सही हवास ने ये देखा कि मम्मी वॉज इन बैड कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन में था। क्योंकि हॉवर्ड कार्टर जो पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पहले इनको सबसे पहले उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1922 में। तो कुछ गड़बड़ हो गई थी, क्या थी, क्या वो चोरी हो गया वहां से, कुछ ऐसा नहीं था, बट व्हाट वाज दैट अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे। अब जो बॉडी में पाया, जब बॉडी मिली, क्या क्या चीजें उन्हें मिली, उसकी पूरी स्टडी अगले पैराग्राफ से। इन दिस चैप्टर एक बात बता दूं आपको कि दैट इन दिस चैप्टर इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस दोनों को ही बताया गया है। Clear? So after months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began to investigating his three nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petal, and cornflowers. The faded evidence of burial in March or April. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins for several hours. तो पहले हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया अभी वो बताया जा रहा है। देयर आफ्टर व्हाट ज़ही हवास विल डू वो बताया जाएगा। So Howard Carter, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit. Nothing buzzed. He reported with the scientific detachment that the consolidated material that had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. So here is मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया था इसे. Sorry, if he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. For his journey to the great beyond, King Tut was lavish with glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, emeralds, a ceremonial apron, sandals, sheets for his fingers and toes, and now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. To separate Tut from his adornment, Carter men removed the mummy's head and served nearly every major joint. Once they had finished, they resembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage of bed where Tut now rests. So, यहाँ पर जो बात आती है वो ये है कि कई महीनों के रिकॉर्डिंग के बाद, काफी ऑब्जर्वेशन के बाद, कार्टर ने क्या किया, ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 कॉफिन्स। उसने 3 कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, विच वर नेस्टेड वन अनदर, जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे। इन द फर्स्ट कॉफिन, पहले कॉफिन में, ही फाउंड अ पीस ऑफ क्लोथ, उसे क्लोथ मिला, गार्लैंड्स ऑफ विलो, गार्लैंड्स हो गया माला, विलो काइंड ऑफ फ्लावर, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी फ्लावर्स, लोटस पेटल फ्लावर, कॉर्न फ्लावर, विच सजेस्टेड दैट ही हैड बीन बरीड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। ठीक है, तो ये सजेशन वो दे रहा था कि पता चला था मार्च और अप्रैल में ये स्वर्ग सिधारे होंगे। When he reached the third coffin, he was in trouble. The body had hardened due to the resin. Resin is a kind of paste. ठीक है, यहाँ पे resin ऑलरेडी मैं मेंशन किया हुआ है सारी चीजें। तो resin is a kind of paste which used to apply on the body to retain the body. ठीक है, पहले एक तरह का पेस्ट होता था, लगाया जाता था। आज भी मेडिकल साइंस ढूंढने की कोशिश करे ऐसा क्या पेस्ट था जो बॉडी को इतने टाइम तक सिक्योर रख सकता था। बहुत बड़ी बात है। क्लियर? सो द रिचुअल रीजंस जो थे वो काफी हार्ड हो गया था। इट सीमेंटेड द बॉडी को सीमेंट की तरह कर दिया था, एंड इट स्ट्रक टू द बॉटम ऑफ द कॉफिन विच वाज मेड ऑफ गोल्ड, और वो उस कॉफिन से
मतलब कि बिल्कुल चिपक गया था जो गोल्ड का बना हुआ था। कार्टर वंडर व्हाट टू डू नेक्स्ट, कार्टर सोचा क्या करूं, बिकॉज नो अमाउंट ऑफ फोर्स कुड सेपरेट द टू, कोई भी इसमें फोर्स लगने से ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकती, बड़ा मुश्किल हो रहा था। नाउ कार्टर ट्राई टू लूसन द रीजंस बाय कीपिंग द बॉडी इन द हॉट सन, उसने सोचा कि इसे धूप में रख दूं। फाइन, तो ही केप्ट द ममी इन 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में उसने रख दिया फॉर several hours, बट कुछ नहीं मिला। ही रिपोर्टेड दैट अ चीसल कुड बी यूज टू कट, फिर फाइनली एक डिसाइड किया चीसल करेंगे, चीसल मतलब उसे खदेड़ खदेड़ खुरच खुरच के निकालेंगे, ठीक है, फ्रॉम द बेनेथ द लिम्स, उसके लिम्स के नीचे वाले हिस्से से, एंड ट्रंक बिफोर, और उसी और ट्रंक से, ठीक है, बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, सो दैट किंग तस बॉडी कुड बी टेकन आउट ऑफ द कॉफिन। अब अपने डिफेंस में क्या किया कार्टर ने, अकॉर्डिंग टू कार्टर ही हैड नो चॉइस, उसका कोई चॉइस नहीं था, he had no choice other than to cut the mummy. He believed that if he hadn't done that, thieves would remove the gold. अगर ऐसा नहीं करेगा तो चोर जो है गोल्ड चुरा के ले जाएंगे टॉम से, which would have looted, जो लूट मार मचा लेंगे। During such time, the royal people were very wealthy and they had believed that after death they could take the wealth along with them. उस टाइम पे, पुराने टाइम पे प्रजा ये मानती थी, सब्जेक्ट्स प्रजा ये मानती थी दैट उस टाइम ये जो किंग है, जो उनके बिलव्ड किंग है, जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे, whom they make the Tom, they used to keep all the precious metals and things, और इस बिलीव के साथ में कि जब वो दूसरे लाइफ में जाएंगे तो they would use it, वो उसको यूज करेंगे, उनका ही है। तो पहले वो बहुत ज्यादा वेल्दी थे। For his life after death he was given precious collars, क्या दिया गया उन्हें, precious collars, necklace, decorative patterns के necklaces दिए गए, bracelets दिए गए, rings दिए गए, amulets दिए गए, ये एक तरह का आपका ornaments है, गहने हैं, ceremonial aprons, ठीक है, apron दिए गए, sandals दिए गए पैरों में पहनने के लिए, sheath for fingers, fingers के लिए sheath दिए गए, toes में जो पहने जाते हैं वो दिए गए, and now an iconic inner coffin, और फिर एक inner coffin और एक mask दिया गया। So Carter removed his head and every joint of his body, ठीक है, उन्होंने उसके हर एक उसको हटाया, ठीक है। After they finished they resembled a remains wooden box, फिर से दोबारा से wooden box में रख दिया, padding filled with layer of sand and concealed the damage, ठीक है, और उसके डैमेज को छुपाने के लिए, ठीक है, लेयर माने कि बालू रख दी, सैंड रख दी। It was his new resting place, अब उसकी एक नई जगह थी, ठीक है, जहां पर उसे रखा गया। So archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. अब बात ये थी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 40 साल के बाद सिटी स्कैन मशीन आई, ठीक है। तो आफ्टर फ्यू डिकेड्स आर्कियोलॉजी हैज चेंज, आर्कियोलॉजी बदली, साइंस में उसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई, एंड नाउ फोकस ऑन द डिटेल्स ऑफ लाइफ, लाइफ की डिटेल्स के ऊपर फोकस किया, एंड द मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और कैसे कैसे लोग मर रहे हैं उसके बारे में पता लगा कि कैसे मरा, कब मरा, किस वजह से मरा। Earlier it was focusing on treasure, पहले तो सिर्फ ये ट्रेजर पे ही फोकस करते थे कि खजानों के बारे में। Now it uses more advanced medical technology, अब मेडिकल टेक्नोलॉजी आने की वजह से इन्होंने इसको यूज करना शुरू कर दिया। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ में, पहले वो ट्रेजर, उसके बाद बॉडी पर आए। तो 1968 में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब उसको एक्सरे किया गया, ठीक है, एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने उसको एक्सरे किया और रिवील्ड, और तब पता चला कि फ्रंट रिब्स और ब्रेस्ट बोन मिसिंग था। ये प्रॉब्लम हो गई थी जब हॉवर्ड कार्टर ने बॉडी को सबसे पहले निकाला था। तो उन्होंने क्या किया था, क्योंकि वो चिसल करके निकाल रहे थे, खुरच के निकाल रहे थे, तो फ्रंट रिब्स और ब्रेस्ट बोन वो मिसिंग हो गया था, और वो वहीं से वो एक तरह से टूट गया था। उन्होंने फिर उसे वैसे ही दोबारा से रख दिया, हालांकि उन्होंने कुछ चोरी नहीं किया, बट हाँ, दे डैमेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये एक तरह से उन्हें जो है हिस्ट्री की जो सबसे बहुमूल्य चीज, प्रीशियस जो चीजें थी, उसके साथ उन्होंने एक तरह से छेड़खानी ही कर दी, ठीक है। तो हम इसे 21st सेंचुरी मर्डर भी कह सकते हैं बाय हॉवर्ड कार्टर।
याद रखना, क्वेश्चन आता है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजेस कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन की फुल फॉर्म है ये, और सीटी बाय विच 100 ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3-dimensional virtual body. What more a CT scan reveal the tooth than the X-ray, and it could be answer of the two of the biggest questions still lingering about him: how he died and how old was he at the time of his death. ठीक है, कैसे मरे और उनका एज क्या था और किस टाइम वो मरे थे। ठीक है, सो किंग तस डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट, उनका इस दुनिया से जाना बहुत बड़ा ही इवेंट था। ही वॉज अ लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, उसके बाद उनकी कोई संतान नहीं हुई तो वो आगे नहीं चल पाए, वही लास्ट थे। एंड हिज फर्नल वॉज अ डेथ रैटल ऑफ डायनेस्टी, और इसी वजह से ये जो है क्या नाम है उनका फर्नल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता। और उन बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। नाउ with the advance of technology, CT scan, computed tomography आया, can give a virtual image of the whole body, जो पूरे बॉडी का virtual image बना सकता है। With the help of the technology, King Tut's body would be scanned to find answer of 2 questions, 2 क्वेश्चन के आंसर्स को पाने के लिए जो है क्या नाम है इनको स्कैनिंग की गई। How he died, कैसे मरे, and how old was he at the time, और क्या एज थी उनके डेथ के टाइम। His death was a shock to the royals, शाही के रूप में बहुत बड़ा शॉक था। Also he was a last person of the family, जैसे मैंने अभी आपको बताया। And his funeral indicated diminished of the dynasty, और इसका funeral बताता कि सब कुछ खत्म हो गया। इनके मरने के बाद उनकी पूरी परंपरा माने कि उनका पूरी खानदान चला गया। So however what happened after his death is still not clear, क्या हुआ उनके डेथ के बाद अभी भी क्लियर नहीं है। ठीक है, आफ्टर मैथ क्लियर नहीं है, लेकिन क्या हुआ कुछ चीजों के बारे में पता जरूर चला था। इस पैराग्राफ को मैं सीधा एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर आप इसे, इस पैराग्राफ को बड़ा सिंपल सा है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबसे पहले आए अमेनहोतप थर्ड, ये इनके फैमिली में सबसे पहले थे। इन्हें तत् के फादर या ग्रैंडफादर कहा जाता था। बहुत पावरफुल किंग थे, हु रूल्ड ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, 4 डिकेड्स तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, ठीक है, जो कि गोल्डन एज माना जाता था उस टाइम। ठीक है, 18 डायनेस्टी उस टाइम गोल्डन माना जाता। फिर उनके बेटे आए, अमेनहोतप के थर्ड के बेटे हुए अमेनहोतप 4, सक्सीडेड हिम, फिर वो आए, इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, और अजीबोगरीब हिस्ट्री लेके आए। इजिप्ट की कहानी यहीं से बदली। द न्यू फेरो यानी कि न्यू किंग, जो नया राजा था, प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एथन, उन्होंने गॉड एथन को मानना शुरू कर दिया, यानी कि सन डिस्क। ठीक है, तो सन को वो गॉड मानते, तो वो उन्हीं को मानते थे, वो उनके अनुयायी थे एक तरह से। तो ही वॉज अ डिवोटी ऑफ गॉड एथन एंड ही चेंज हिज नेम ऑन द नेम ऑफ गॉड एथन। एथन के नाम पर अपना नेम चेंज कर दिया अखेनातेन, इसका मतलब था सर्वेंट ऑफ एथन, एथन का सर्वेंट। And move the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten। ठीक है, और उसके बाद थेब्स जो सिटी जहां पर वो राज करते थे, उस रिलीजियस सिटी का नाम बदलकर अखेतातेन कर दिया। अखेनातेन उनका नाम, अखेतातेन उनके सिटी का नाम। आज हम उसे करेंटली अमरना के नाम से जानते हैं। क्या किया उन्होंने? ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन। बाद में उन्होंने क्या किया, जितने भी उस कंट्री में जितने भी टेम्पल्स थे अमुन के, जो उनका मेजर गॉड था, सबसे बड़े गॉड माने जाते थे, उनके टेम्पल्स को तहस नहस कर दिया। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उनकी इमेजेस तोड़ दिए। क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उन्हें टेम्पल्स तोड़ दिए। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफाइड टाइम, बहुत खतरनाक टाइम था उस टाइम। से रे जॉनसन एक आर्कोलॉजिस्ट है, वो बताते हैं, एंड इज अ डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर। ठीक है, द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स, वो साइट था उस थेब्स का। खैर, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, कई सेंचुरीज जिस फैमिली ने रूल किया, वाज कमिंग टू एन एंड। ठीक है, वो एंड में आई, और अखेनातेन जो है वो पागल हो गया, लिटिल वैकी। राइट, अखेनातेन के बाद एक मिस्टीरियस रोल आए समन खरे। समन खरे बहुत जल्दी चले गए, फिर यंग तुतनखातेन को बिठा कर गए अपने उनके थ्रोन पर, और जिसे हम किंग तत के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइट। सो किंग तत ने अपना नाम तुतनखामुन से, क्योंकि तुतनखामुन कर लिया तुतनखातेन से, क्योंकि वो